गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडुसेट प्रसारण के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नंबर 2 में। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे टू मेक टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ टीएस डाइकोट एंड टीएस मोनोकोट स्टेम। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, सैंपल्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। This is of dicot stem, this is of monocot stem for the purpose of section cutting. Sharp blade, the newer blade I have, better to take the dissecting razor. Watch glasses, plain slides that are in that box, we will take 1 or 2, and cover slips that are in that box. Brush to transfer the sections, glycerine to make the temporary mount, and saffronin stain for the purpose of staining the tissue. Now the procedure, प्यारे विद्यार्थियों, take पीसेज ऑफ यंग मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के पीसेज हम ले सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने डाइकोट स्टेम का एक पीस लिया, कट द थिन सेक्शंस बाय कीपिंग द स्टेम in between first finger and thumb. Keep the stem in such a way that the blade cut it horizontally. A thin section as much as possible is to be cut. Cut 4 or 5 sections. Keep these sections in a watch glass containing water. Now, in the same way, take a branch of monocot stem. Also cut the thin sections by keeping the stem in between first finger and thumb. Care is to be taken again so that the injury can be avoided. Thin sections of monocot stem as much as possible. After cutting the sections, we have to select some fine sections. Let us see. We have selected in the watch glass the 3 sections of dicot stem and 3 sections of monocot stem. Now add some saffronin solution, 1 or 2 drops with the help of dropper. Now stain the sections by adding 1 or 2 drops of saffronin stain on the cut sections. This is of dicot stem and this is of monocot stem. Now transfer the sections first
of dicot SAM with the help of brush in pure water to remove excess of stain. Also transfer the sections of monocoat SAM likewise in pure water to remove excess of stain. Now transfer one thin section on a clean slide that is of dicot. Now transfer thin section of dicot as well as monocoat on the plain clean slides that is of dicot, that is of monocoat. Now put a drop of glycerine over the slide and then place a cover slip gently using a needle so that air bubble is avoided. Tap the slide a little bit. If air bubble is there, then lift it again and fix once more to remove the bubble from the vicinity of the slide. Tap a little and then observe under microscope. This is of monocoat SAM. Likewise, put the cover slip over the section of dicot SAM. Precautions what are to be taken for preparation of these slides. प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने स्क्रीन पे हैं. The blade used must be sharp and should be free from nicks. जो ब्लेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शार्प होनी चाहिए और उसके अंदर कोई निक नहीं होना चाहिए, यानी दैट शुडंट बी द ब्लंट जो हिंड्रेंस पैदा करे इन सेक्शन कटिंग. यूज ओनली ब्रश फॉर ट्रांसफर ऑफ द सेक्शंस. ये हमने देखा कि हमने जितनी बार भी जो सेक्शंस ट्रांसफ़र किए हैं उन्हें ब्रश इस्तेमाल की है. ओवर स्ट्रेनिंग एंड अंडर स्ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी वी शुडंट लीव द सेक्शंस फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द स्ट्रेन so that we can avoid the overstraining, as well as we can wash the sections in water if overstraining is there. We should also put the sections for an appropriate period so that straining occurs in them. Always keep the cover slip gently to avoid air bubbles on the slide. Air bubble slide पे ना आए, उसको avoid करने के लिए बहुत धीरे से cover slip को सेक्शन के ऊपर रखना है. नो एक्स्ट्रा स्टेन एंड ग्लिसरीन शुड कम आउट ऑफ द स्लाइड. अगर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन और स्टेन बाहर आ जाता है तो वो टिश्यू पेपर के द्वारा या फिल्टर पेपर के द्वारा साफ कर देना चाहिए. हमने ये दो स्लाइड ली, इनमें एक्स्ट्रा ग्लिसरीन बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है. सो दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट placing of the cover slip as far as
the glycerine spreading is concerned. Before observing the slide under light microscope, we can discuss the characteristics of dicot stem. प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे TS डाइकोट स्टेम स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं. इसमें सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो है एपिडर्मिस. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. इट बियर्स मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स एंड क्यूटिकल ओवर इट. इसके एपिडर्मिस के ऊपर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स होते हैं और एक थिक सी क्यूटिकल भी इसके ऊपर पाई जाती है. सेकेंड इसका स्ट्रक्चर है कोर्टेक्स. और कोर्टेक्स प्यारे विद्यार्थियों इसका 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहली लेयर है हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस मीन्स बिलो द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस से नीचे है. इट इज़ प्रेजेंट बिलो एपिडर्मल सेल्स एंड मेड अप ऑफ कोलनकाइमा सेल्स. इसका दूसरा रीजन है प्यारे विद्यार्थियों कोर्टिकल रीजन यानी कोर्टेक्स. इट ऑल्सो कंटेन्स पैरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन दैम. उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट रीजन है एंडोडर्मिस. इट इज़ द सिंगल लेयर दैट सेपरेट्स द कोर्टेक्स फ्रॉम वेस्कुलर बंडल्स. कोर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट करने के लिए जो इनर मोस्ट सिंगल लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. इट हैज़ बैरल शेप्ड सेल्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च शीथ एज इट कंटेन स्टार्च. इसको स्टार्च शीथ भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टार्च मौजूद होती है. पेरिसाइकिल, द नेक्स्ट लेयर या थर्ड लेयर वी कैन से, या थर्ड पार्ट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ TS डाइकोट स्टेम इज पेरिसाइकिल. इट इज मेड अप ऑफ few layers of sclerenchyma cells. Now fourth is vascular bundles. Vascular bundles प्यारे विद्यार्थियों are numerous and arranged in a ring. वो एक रिंग के अंदर अरेंज्ड होते हैं. The vascular bundles consist of phloem, cambium and xylem lying one above the other. That means collateral and open type vascular bundles. यानी इसके अंदर सबसे ऊपर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, ये एक दूसरे के ऊपर, यानी सबसे ऊपर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम. दैट मीन्स जो कंडीशन है दैट इज कोलैटरल. और क्योंकि कैम्बियम की प्रेजेंस इसके अंदर है, हैंस वी कैन से द वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन टाइप. जाइलम एज फार एज कंसर्न्ड, जाइलम वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. द मेटाजाइलम आर बिगर इन साइज एंड लाइंग टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी वो बाहर की तरफ हैं. प्रोटोजाइलम आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर. इस कंडीशन को एंडार्च कहते हैं, यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्रोटोजाइलम यानी छोटे जाइलम सेंटर की तरफ हैं और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हैं, यानी बड़े जाइलम बाहर की तरफ हैं. इस प्रकार की कंडीशन को एंडार्च कंडीशन कहते हैं, और जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लियरली कैन बी सीन इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्टेम. मेडुलरी रेज प्यारे विद्यार्थियों फिफ्थ स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज पैरेन्काइमा सेल्स लाइंग इन बिटवीन द 2 वेस्कुलर बंडल्स. 2 वेस्कुलर बंडल्स क्योंकि साइड बाय साइड रिंग में प्रेजेंट हैं वेस्कुलर बंडल्स, तो मेडुलरी रेज जो हैं वो उन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, दिखाई देती हैं. नाउ पिथ, इट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड वेल डेवलप्ड. और इसके अंदर भी जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं. प्यारे विद्यार्थियों डाइकोट स्टेम का मॉडल स्क्रीन पे आ रहा है और इसे आप देख सकते हैं. इसके अंदर सबसे पहले ये बाहरी लेयर है दैट इज ऑफ एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट greenish in color epidermis. Multicellular hairs are present on outer side also. Then there is second region that can be said as cortex. और cortex मैं डिस्कस किया था कि cortex के अंदर 3 फर्दर पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, जिसमें पहला पार्ट हाइपोडर्मिस, जस्ट बिलो एपिडर्मिस, दिस वन कैन बी द हाइपोडर्मिस. Then cortex, this all is cortex, 3 or 4 layers. Then endodermis,
the single layer barrel shaped cells that separate cortex and vascular bundles. These are vascular bundles. यानी cortex और vascular bundle को अलग करने के लिए एंडोडर्मिस द सिंगल लेयर. प्यारे विद्यार्थियों, cortex के अंदर ही हमें ऑयल ग्लैंड्स भी नजर आ रही हैं टू स्टोर द ऑयल इन सम ऑफ द प्लांट्स. नाउ वी कैन टेक वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स प्यारे विद्यार्थियों, जो थर्ड स्ट्रक्चर था, दैट कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड. दिस इज द फ्लोएम, दिस इज अगेन फ्लोएम, this is cambium, then metaxylem, or inner side there is protoxylem. Small xylem are present on inner side, large xylem are present on outer side. The condition is endarch. Phloem, cambium और xylem, ये जो अरेंजमेंट है ये आपके सामने है, तीनों ऊपर से नीचे की तरफ इनका